protests have erupted across North India after the Supreme Court redefined the Aravalli Hills, one of the world's oldest geological formations. Now, the Aravallis span across states like Rajasthan, Haryana, Gujarat, and the capital Delhi. Under the new definition, an Aravalli Hill should be at least 100 meters above the surrounding terrain. Two or more such hills within 500 meters of each other, along with the land between them, are considered an Aravalli range. Now, environmentalists have raised concerns that defining Aravalli Hills with height risks leaving numerous lower, scrub-covered but ecologically critical hills unprotected from mining and construction. Environmentalists also warn that weakening the Aravalli protection will increase dust and particulate matter in Delhi NCR. By now, you know what it will do to pollution. It will accelerate groundwater depletion. It will worsen heat extremes. It will push the desert eastwards, permanently damage the fragile ecosystem that cannot regenerate easily. They argue that once the Aravallis are flattened or built over, the damage is irreversible. The government, however, insists that the new definition is meant to strengthen regulation and bring uniformity and not dilute protection. But is that really happening on the ground? My colleague Sharath sent us this report. Aravalli, the ancient mountain range that has stood for centuries, is now at the center of a storm. The Supreme Court's new definition has stripped protection from nearly 90% of the hills, sparking massive protests from Gurugram to Jaipur. Under the revised norms, only hills of 100 meters or taller are protected, and ranges must have 2 or more such hills within 500 meters. Critics say this strips protection from 90% of Rajasthan's Aravallis, opening the gates to unchecked mining. अगर इस गाइडलाइन को वापस नहीं लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो हम इसी गांव के लोग, इस गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो इसी पहाड़ की चोटी पे जाएंगे और एक बड़ा धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे. Activists are taking to the streets, raising slogans and staging sit-ins to stop mining and protect India's ecological lifeline. Protests erupted in Gurugram outside Minister Rao Narbir Singh's office, in Udaipur streets and on Alwar Hills, as citizens and lawyers demanded urgent action. However, the Union Environment Minister has pushed back, calling the charges baseless. He has asserted that only a tiny 0.19% of the total 1.4 lakh square kilometer Aravalli region is open for mining, while an overwhelming portion remains protected. सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए. जहां तक उसका बॉटम जाएगा, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है. The opposition has slammed the Supreme Court move, calling the new Aravalli definition a direct threat to the region's ecology. देश को जाति और धर्म में बांट के हिंदू मुस्लिम की बात करके वोट लेके गायब हो जाते हैं. इसके अंदर जनता का मूवमेंट बन चुका है. सब लोग चाहते हैं कि अरावली बैन रहे, अरावली की पहाड़ियां माइंस के लिए नहीं खोली जाएं. Is the Aravalli range under danger, or are the charges exaggerated? The ecological fight is on. With Devankur Vadhavan, Bureau Report, India Today. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि 100 मीटर या उससे ऊपर की पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया. लेकिन हम आपको आज दिखाने आए हैं कि आखिर किस तरह से यहां पर अरावली का सीना चीरकर अरावली को बर्बाद किया जा रहा है. आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये अलवर का इलाका है. अलवर में कितनी ऊंची ये पहाड़ी रही होगी जिसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. बड़े बड़े क्रेशर यहाँ पर लगे हुए हैं. भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर के या उसके ऊपर के पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, मगर यहाँ तो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को भी
नहीं छोड़ा गया है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ज्यादातर भूमि जो है वन विभाग में है, जो जहां पर माइनिंग अलाउ नहीं है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं चोटी छूटी हुई है माइनिंग माफियाओं के द्वारा, ये वन भूमि है। राजस्थान सरकार के ये वन भूमि पर इस तरह से खनन यहाँ पर चल रहा है। अभी भी इसके आसपास के इलाके में क्रेशर लगे हुए हैं। अब ये मिली भगत से ही चल रहा है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी या फिर माइनिंग विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी पहाड़ी को काट दिया गया हो, इतनी ऊंची पहाड़ी को काट दिया गया हो और पता नहीं चले किसी को कि माइनिंग हो रहा है यहाँ पर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान के लोग इसीलिए डरे हुए हैं कि 100 मीटर का कानून 2003 में जो अशोक गहलोत लेकर आए थे वो यहां पर लागू है, और इसके बावजूद इस तरह से यहां पर 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियों को काटा जा रहा है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, भिवाड़ी, अलवर, आज तक। All right, and Sharath is live with us as well at this point. Sharath, क्या ये कहना सही होगा कि आपकी रिपोर्ट देखने के बाद मुझे लग रहा है कि एक तरफ इशू है कि लीगल माइनिंग अलाउ करनी चाहिए कि नहीं, पर आप कह रहे हैं लीगल छोड़िए, जब अलाउड नहीं था तब इतनी इलीगल माइनिंग हो रही थी कि अब अगर उसे लीगल कर लिया तो क्या तबाही होगी। क्या ये मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल सोनल, जो आप रिपोर्ट दिखा रही थी वो ये पहाड़ी है। देखिए अब ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी के पास ये क्रेशर मशीन है। आप देखिए किस तरह से जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, ये क्रेशर मशीन है। यहाँ पर नेटवर्क होता तो मैं आपको नीचे ले जाकर दिखाता। करीब 300 मीटर नीचे तक चली गई है पहाड़ी। आप देखिए गांव की पेरिफेरी को देखिए किस तरह से वो गांव नजर आ रहा है, जहां पर कहीं भी जो विस्फोट होता है तो इनके घरों में दरारें आती हैं। और 300 मीटर तक ये लीगल है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। उसके बाद अशोक गहलोत ने रिचर्ड बर्फी फार्मूला लेकर आए और रिचर्ड बर्फी फार्मूले के तहत उन्होंने कहा कि 100 मीटर के पहाड़ी के नीचे के पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा। और उसके बाद ये लीज दिया जाने लगा। ये लीज दिया गया है उसी समय 2009-10 में, जब अशोक गहलोत ने रिचर्ड बर्फी फार्मूले के तहत अरावली हिल्स के 100 मीटर के नीचे की पहाड़ी को अरावली नहीं माना और 300 मीटर नीचे तक खुदाई हुई है। वो तस्वीर हमने आपको भेजी है सोनल, वहां से 300 मीटर तक ये लीज अभी चल रही है, वैध है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यही एक डर है, भय है कि जो वैध लीज दिया जाता है वहां आसपास कोई लोग जो अपने लीज पे तो खोदते नहीं हैं, आसपास के पूरे इलाके को खोद डालते हैं और अपने लीज को बचा के रखते हैं और उसके बाद नीचे तक चले जाते हैं। भूपेंद्र यादव बार बार कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, लोग समझ रहे हैं कि जमीन के तल से 100 मीटर, हम तो कह रहे हैं कि नीचे जितनी गहराई हो, अरे नीचे गहराई तो 300 मीटर तक चली गई है जिस माइंस पर मैं खड़ा हूं। लेकिन अब यही एक डर है लोगों में कि इस तरह से अगर सरकार जो कह रही है दफ्तर में बैठकर, वो अगर आप ग्राउंड में आकर देखेंगे तो नहीं है। आपको दिखाए किस तरह से कि लीगल माइनिंग के जहां पर अलाउ किया गया है वहां पर 160-180 फीट की पहाड़ी को काट दिया गया और जहां पर आज के दिन में लाइसेंस दिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, वहां पर 300 मीटर तक अंदर चले गए हैं और ये कहकर कि 60 फीट ऊंची पहाड़ी थी, इसे अरावली नहीं माना जाएगा। जो भूपेंद्र यादव बता रहे थे सोनल, बहुत कंफ्यूजन है इसे लेकर। देखिए 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए हरियाणा के कोट आलमपुर का पूरे अरावली में माइनिंग पर पाबंदी लगा दी। अशोक गहलोत गए सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि हाहाकार मच जाएगा राजस्थान में और जो चल रही उसे चलने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट मान गया लेकिन नियम बनाने के लिए कहा। अशोक गहलोत ने 2003 में रिचर्ड बर्फी फार्मूला लेकर आए 100 मीटर वाला। 2010 में फिर गए ये, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। अब उसी अशोक गहलोत के फार्मूले को लेकर अभी 100 मीटर का फार्मूला राजस्थान में लागू है। बहुत लोग ये जानते हैं कि नहीं लागू, उसी फार्मूले के तहत ये माइनिंग हो रही है सारी जी, उसी फार्मूले को हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में भी लागू करना चाहते हैं। इसे लेकर यहाँ पर विवाद है, वरना 100 मीटर का फार्मूला राजस्थान में लागू है और आकर जिसको जो कह रहा है कि 100 मीटर फार्मूले के तहत अरावली जो है वो सुरक्षित होगी, उसे आकर ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। शरद, एक्सीलेंट रिपोर्ट एज ऑलवेज। आपने एकदम बता दिया है हमें, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड क्यों एनवायरमेंटलिस्ट इतना इस पे लेकर आ रहे हैं। थैंक यू ये सारी जानकारी हमें देने के लिए।
So that was my colleague Sharat actually coming to us from Alwar there.